Good morning, my dear student. This is Amit Tripathi. You are welcome in my class. Guys, today's topic is the ray diagram of image formation by the lens. Guys, you all are familiar with the ray diagram. That means you all have learned in the previous classes. That means when we taught you the spherical mirror, you also known the ray diagram of image formation by the spherical mirror. Guys, in that case we will use a set of rules to finding the image through the spherical mirror. Similar case is here. We also use here a set of rules to finding the image formation by the spherical lenses. So first we discuss what is the rule, that means which rule you will use to finding the image through the spherical lens, that means how you draw the ray diagram. Clear? There are three set of rules which is used in the to form the image formation of ray diagrams through the spherical lenses. The first rule is, rule 1 is, a ray of light parallel to principal axis after refraction through the lens, it appear to pass or passes through the focus of lens. Clear? That means this is the figure and you all are know this is the convex lens, this is convex lens and this is the concave lens. Concave lens. A ray of light parallel to principal axis, this is the principal axis, this is the optical center and this is the focus. Clear? Similar things is here. O is the optical center of the concave lens, F1 is the first focus and F2 is the second focus. Clear? ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस में. ठीक है, आप एक बार उसको रिमाइंड कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो. क्लियर? Then a ray of light parallel to principal axis after refraction through the lens passes or appear to pass through the focus of lens. Clear? अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उस लेंस के फोकस से पास होगी या ऐसा आपको लगेगा कि उसके फोकस से पास हो रही है. क्लियर? दोनों वर्ड यूज हुआ है तो ये अपीयर टू पासेस और पासेस दोनों की मीनिंग अलग अलग मीन्स दोनों डिफरेंट लेंसेज में यूज होंगे. फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में. सपोज दैट दिस इज द पैरेलल लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस आर फोकस. तो ये इसका फोकस है, यहां से ये पास होगी. ये आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है. क्लियर? ये इंसिडेंट रेज और ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रेज. क्लियर? सपोज दैट आपकी लाइट रेज इधर से इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से पास होगी? यहाँ से पास होगी. क्लियर गाइस? अगर हम कोई दूसरी रेज यहाँ पे यूज करते हैं, ये भी एक पैरेलल लाइट रेज है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज आल्सो आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus of the convex lens. Clear? This is clear. Passes through the focus of lens. And second one is or appear to passes. If you use the concave lens, then what happens? This is the incident light rays which is parallel to the principal axis. This is the second light rays which is also parallel to the principal axis. Guys, you all are know the concave lens is known as the diverging lens. That means after refraction the light rays is diverge. Clear? ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है. तो इसका पाथ क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे पास हो जाएंगी. क्लियर? ये क्या होगा? ये इस तरीके से पास हो जाएगा आफ्टर द रिफ्रैक्शन. These light rays will not meet anywhere when you draw the inside. Clear? अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइट रेस कहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं. Then what happens? अगर हम इन लाइट रेस को पीछे की तरफ बढ़ाएं, अगर इन लाइट रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं
तो आपको ये मिलेगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे और वो पॉइंट होगा क्या, उसका फोकस होगा। क्लियर? सेम थिंग्स इज हियर, दिस इज आल्सो यू कैन एबल टू ड्रॉ दिस। क्लियर? तो ये है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है अपीयर टू पास थ्रू द फोकस ऑफ लेंस। क्लियर गाइस? तो ये आपका डायग्राम था और ये फर्स्ट रूल था। क्लियर? देन व्हाट इज द सेकेंड रूल? सेकेंड रूल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। अभी क्या थी, लाइट रेस पैरेलल थी तो किससे पास हो रही थी, फोकस से। अब क्या होगी, लाइट रेस आपकी फोकस से इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगा कहां से, वो जो लाइट रेस पास होगी वो पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? क्लियर? देन वी सी द रूल सेकेंड। Rule number 2, a ray of light passing or appear to directed towards focus of lens after refraction becomes parallel to principal axis. Guys, this rule is just opposite of the first rule. First में क्या देखा था, light rays incident on the lens parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. Clear? इस second rule में क्या है, लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस, दैट मीन्स अब लाइट रेज आपकी फोकस से इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस हमने यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस भी यूज किया गया है, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अभी हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से। क्लियर? आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट लाइट रेज बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन बोथ केसेस। क्लियर? देन वी ड्रॉ द डायग्राम। If the light rays is directed or passes through the focus, suppose that this is the light rays which is incident on the lens, this is passes through the principal focus of the lens. Clear? After refraction it will parallel to the principal axis, and after refraction it will parallel to the principal axis. If you draw the second light rays, that means this is the second light rays, and after refraction it will also becomes parallel to the principal axis. ये लाइट रेस फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा पाथ इसका हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये तो हो गया लाइट पासिंग। Clear? Then are appear to directed towards focus. Appear to directed towards focus. That means suppose that ये आपकी लाइट रेज है और ये लाइट रेज आपकी आ रही हैं। क्लियर? ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं लेंस पे। अब देखिए, अगर आप इसको डॉटेड आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये डायरेक्टेड कहाँ पे हो रही है, टूवर्ड्स द फोकस। फोकस पे आपके आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर? सपोज दैट ऐसे ही कोई दूसरी लाइट रेज है, दिस इज द सेकेंड लाइट रेज विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस। हाउ यू डिसाइड? इफ यू ड्रॉ दिस इन डॉटेड फॉर्म, इट विल बी मीट एट ए सेम पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइट रेज। क्लियर? ये टूवर्ड्स द फोकस डायरेक्टेड है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। ये एक चीज़ और आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो आपका डायमीटर होता है लेंस का, आप लाइट रेज को यहाँ तक इंसिडेंट कराएंगे और इसके बाद यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को आप शो करेंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस सरफेस तक लाइट रेज लेके आते हैं, उसके बाद यहीं से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करते हैं। नॉट, दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, द करेक्ट वे, यू विल ड्रॉ दिस लाइट रेज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। क्लियर? यहाँ तक आप लाइट रेज को लेके आएंगे, देन आफ्टर यू विल शो द refracted light rays, either it is parallel to the principal axis or passes through the principal focus of the lens. Clear? तो ये आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड रूल था, लाइट रेज
passes through the principal focus are directed towards the principal focus after refraction becomes parallel to the principal axis. This is the second rule and which is just opposite of the first rule. Okay, then we see what is the third rule. Third rule we also discussed when we discuss about the definition of optical center. It have the properties when the light rays is passes through the optical center of the lens, it will not deviated from its original path. That means it follow the straight line path. Without deviation the light rays passes through the lenses after the refraction. Clear? तो इसको भी हम देखते हैं क्या है. Rule number third is a light ray passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. क्लियर? दैट मीन्स अगर भी कोई लाइट रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से, इस पॉइंट से पास हो रही है, दैट विल इमर्स विदाउट एनी डेविएशन. क्लियर? दैट मीन्स वो बिना किसी अपने पास से डेविएट हुए ही स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए लेंस से रिफ्रैक्ट होगी. क्लियर? तो किसका डायग्राम को कैसे आप शो करेंगे? सपोज दैट ये कोई लाइट रेज आपकी आ रही है, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रेज and passes through the optical center. This will be not deviated from its original path, that means from its path, that means it will passes in straight line. क्लियर? ये सीधा ऐसे ही निकल जाएगी. अगर भी सपोज दैट कोई लाइट रेज इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो ये भी विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी सीधी स्ट्रेट. दोनों का पाथ क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा. Similar case is here in case of concave lens. Suppose that a light rays which is passes through the optical center of a concave lens without any deviation, it will be refracted. Clear? Same things is here. Suppose that this is the second light rays. This is also emerged without any deviation. Clear? तो ये there are three set of rules which we will used in the next topic, that means ray diagram of image formation by the lens. At least two light rays, that means at least two refracted light rays meet at any point. That point is represents the image of the object. Clear? ये हमने आपको स्फेरिकल मिरर के केसेस में भी बता रखा था कि जहाँ पे कोई भी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर्स हो या एग्जैक्टली मीट होंगी, वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेम थिंग्स इज हियर वेयर image is formed at that point where at least two refracted light rays is meet. That point is represents the image of that object. Clear? तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन, देन कॉनकेव लेंस का. क्लियर? Guys, here we are going to discuss the ray diagram of image formation by the convex lens. This is the convex lens. Convex lens. And to finding the ray diagram or to draw the ray diagram of image formation, we use these three set of rules which we have already discussed before these topics. Clear? At least two set of rules, that means at least two refracted light rays at which point meet, that point is represents the image of the object. Clear? The first case is when the object is at infinity. Infinity means object is a very large distance from the lens. Clear? ये इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत इनफाइनाइट पे है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि दिस इज द वेरी लार्ज डिस्टेंस. अब आप कैसे कंपेरिजन करेंगे? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या इसका जो अपर्चर डायमीटर है, उसके कंपेरिजन में जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे. सपोज दैट हमने ये सपोज किया कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा है, यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज, अब आपका इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन आपको करना है. कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सपोज दैट हमने ये सपोज किया यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही है, वो लाइट रेज कैसी होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है. दिस इज द फर्स्ट लाइट रेज. एक बार आप अपने माइंड में फिर से सेट कर लीजिए, ये जो आप हमने एक लाइन यहाँ पे डॉटेड ड्रॉ की है,
लाइट रेस को आप यहाँ तक ज़रूर लेके आएंगे। क्लियर? और इसके बाद आप एक वीडियो में आपको और शेयर करूँगा जिसमें मैंने डिस्कस कर रखा है कि आप ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे आप एग्जैक्टली रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? और रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर? वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देगा, आपसे रे डायग्राम पूछेगा, इमेज की पोजीशन, नेचर और उसकी साइज आपको बताना होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए। लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये फोकस ऑफ द लेंस, तो ये देखिए फोकस। हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर दूं, ये आपका फर्स्ट फोकस है, यहाँ हमने लिख रखा है 2f1, दैट मीन्स OF1 जितनी डिस्टेंस पे होगा सेम डिस्टेंस पे आपका ये भी होगा। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ होगी वही ये फोकल लेंथ का 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स O से 2F की दूरी। क्लियर? सेम थिंग्स इज हियर होगा, जितनी O से F1 की दूरी होगी वही O से F2 की दूरी होगी, और वही डिस्टेंस आपकी F2 से 2F2 के बीच की भी डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस पास होगी कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस आपकी हो गई। क्लियर? बट आपको चाहिए क्या, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मीट होनी चाहिए। क्लियर? तो सपोज दैट दूसरी भी लाइट रेस जो आपकी मिल रही है वो क्या हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी कहाँ से पास होगी, ये भी पास होगी सेम पॉइंट से, दैट मीन्स फोकस ऑफ द लेंस। इसका मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, फोकस मिल रहा है। क्लियर गाइस? ओके। सपोज दैट कोई लाइट रेस यहाँ से भी पास हो रही है, ये भी पैरेलल टू द क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो आपको मिल क्या रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जो मिल रही हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं, F2 पे मिल रही हैं। क्लियर? तो F2 पे मिल रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस का जो मीटिंग पॉइंट होगा वही मीटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इमेज का। क्लियर? तो पोजीशन आपको क्या मिल रही है, फोकस, सेकेंड साइड ऑफ द फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। क्लियर? तो पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा एट द F2, एट द F2। देन व्हाट इज द नेचर, नेचर आपको क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, आर वर्चुअल, दैट मीन्स अपीयर हो रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, दैट मीन्स इमेज इज रियल, एंड दिस इज आल्सो नेचर इन इन्वर्टेड, नेचर इज इन्वर्टेड। एंड व्हाट इज द साइज, साइज आप देखिए, ऑब्जेक्ट की साइज आपको क्या मिल रही है, ये साइज है, और इमेज की साइज क्या मिले, एक पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म हो रहा है एक पॉइंट पे हो रहा है, दैट मीन्स पॉइंट साइज होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा साइज का इमेज आपको मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट रे डायग्राम था, और ये पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। क्लियर? सेकेंड देखते हैं, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 दैट मीन्स 2f1 के पहले रखा हुआ है, हमने रिप्रेजेंट किया क्या, ऑब्जेक्ट आपका AB है, इसके इमेज की फॉर्मेशन का रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट लाइट रेस दैट इज बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the principal focus and this will passes through the principal focus। लाइट रेस देखिए, एरो आप ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको जो सेंड करेंगे उसमें आप देखेंगे, उसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से कैसे बनाना है। एंड सेकेंड वन इज, एंड सेकेंड लाइट रेस विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, दिस इज द passes through the optical center of lens and without any deviation it will be refracted। क्लियर? ये आपकी सेकेंड लाइट रेस विदाउट एनी डेविएशन पास हो रही है। ये कुछ आप स्केल्स यूज़ करेंगे तो आपको करेक्टली मिल जाएगा। ये मीटिंग पॉइंट इसका मिल रहा है और ये मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। देखिए ये आपका है इमेज, क्या है, B डैश A डैश, दिस इज द इमेज। इमेज कहाँ मिल रहा है, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन, सॉरी यहाँ F2 होगा,
बिटवीन फोकस F2 एंड 2F2, ये दोनों के बीच में मिल रहा है। एग्जैक्टली मिड में नहीं बोला, बीच में मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप पोजीशन अगर लिखेंगे तो क्या मिलेंगे, पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। देन व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, दैट मीन्स दिस इज द रियल इन नेचर। एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था और इसका जस्ट इस तरीके से मिला, तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हाट इज द साइज, साइज का कंपेरिजन करिए, साइज का कंपेरिजन करेंगे तो ये देखिए साइज आपकी है और इसकी इमेज की साइज, दोनों के साइज में आपको डिफरेंस मिल रहा है। इमेज की साइज क्या मिल रही है, लेस मिल रही है इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कैसा होगा, ये भी होगा डिमिनिश्ड साइज का, डिमिनिश्ड इन साइज। तो गाइज ये आपका था सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2F1। देन नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 2F1, exactly at the point that is 2F1. Object is placed at 2F1, then the light rays becomes parallel to the principal axis. ये light rays आ रही है, becomes parallel to the principal axis. After refraction passes through the principal focus of the lens. And second one is a light rays which is passes through the ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, दैट विल बी पास विदाउट एनी डेविएशन। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है विदाउट एनी डेविएशन, ये देखिए कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। और पोजीशन इसकी क्या मिल रही है, ये मिल रही है 2F2 पे, दैट मीन्स ये है 2F2। तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज जो मिल रहा है A डैश B डैश, क्लियर। पोजीशन आपको मिल रही है एट 2F2, दैट मीन्स दिस इज एट 2F2। एंड व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज का कंपेरिजन आप करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा अप्रॉक्सीमेट सेम साइज का मिल रहा है। जो साइज AB की है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की है, वही साइज आपको A डैश और B डैश की है, तो ये आपकी साइज क्या हो जाएगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, क्लियर। जो साइज आपके ऑब्जेक्ट की है उसी साइज का आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, क्लियर। नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। फोर्थ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड देन यू ड्रॉ ए लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये कॉमन रूल ऑफ यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी सब में, सारे केसेस में। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एंड देन ए लाइट रेज विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज पास हो रही है, ये देखिए। तो ये मीट कहाँ पे करेगी, क्लियर। आपको मीटिंग पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, तो एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है तो आपको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा A डैश एंड दिस इज B डैश, ठीक है। अब पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा था कहाँ, F1 एंड 2F1 के बीच में, और इमेज कहाँ पे मिल रहा है, बियॉन्ड 2F2, क्लियर। पोजीशन इज बियॉन्ड 2F2। देन व्हाट इज द नेचर, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, दैट मीन्स रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देन व्हाट इज द साइज, साइज का कंपेरिजन करिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट की साइज है और ये इमेज की साइज है, दोनों की साइज में आपको डिफरेंस अपीयर हो रहा होगा। साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रहा है, तो साइज आपको क्या मिल रहा है, लार्जर मिल रहा है। इसको आप लिखेंगे मैग्नीफाइड
क्लियर, ये मैग्नीफाइड भी देगा। तो ये था आपका केस नंबर 4। देन व्हाट इज द केस नंबर 5? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द फोकस, दैट मीन्स f1 ऑफ द लेंस। केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, देन this is the object and this is the position of the object. We represent the object, that is AB. Then we draw the ray diagram. The first ray which is passes through the parallel to the principal axis, after refraction passes through the principal focus of the lens of the second side, that means it will be passes through the f2, and this is the refracted light rays. ये आपका arrow हो गया। Second, a light rays which is passes through the optical center of the lens, that will be pass without any deviation. That means this is the optical center and this is the light rays, this is the light rays which is passes through the principal। ये देखिए, अब आपको अपीयर क्या हो रहा है? क्या इन दोनों लाइट रेज का कोई मीटिंग पॉइंट आपको मिल रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रेज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर? और आपको ये पता है कि एट दैट पॉइंट where at least two refracted light rays meet, that meeting point is represents the image of the object। यहाँ पे कोई मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हमने यह सपोज किया कि ये इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट इन्फिनिटी। क्लियर? देन व्हाट इज द नेचर आपको क्या मिला है? लाइट रेज आपको जो मिले वो आगे बढ़ाने पे हमने ये सपोज किया इनफाइनाइट पे मिलेंगी। ठीक है, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, दैट मीन्स इट इज इन रियल नेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है, दैट मीन्स उसका इमेज जो बनेगा वो कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा। तो यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। देन व्हाट इज द साइज? अभी आपने देखा था जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन टू f1 एंड f1 के बीच में था, तो वहां पे आपको क्या मिला था? मैग्नीफाइड। तो बियॉन्ड द 2f2 था, और ये कहाँ पे मिला? इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो ये तो एग्जैक्टली यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसकी साइज जो होगी, साइज ऑफ द इमेज, दैट विल वेरी लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लार्ज मैग्नीफाइड are highly magnified, this is the important case। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O and F1। O and F1 दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है AB से। देन यू ड्रॉ द रे डायग्राम। द लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the first focus or principal focus of the lens। ये हो गया। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई। एंड सेकेंड वन इज ए लाइट रेज passes through the optical center। ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास करा रहे हैं तो वो लाइट रेज विदाउट एनी डेविएशन पास होगी। दैट मीन्स ये देखिए कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। सॉरी, अब इन दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट को आप देखिए, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं दोनों के बीच के सेपरेशन वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये तो श्योर है कि ये आगे इनफाइनाइट पे भी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों लाइट रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ जब आप बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये देखिए आपको मिलेगा, इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे डॉटेड, ये दोनों लाइट रेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे मिले हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये इमेज का नेचर आपका क्या होगा? वर्चुअल होगा।
क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये अपीयर हो रहा है। अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा इमेज ए डैश एंड बी डैश। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट केस है। सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है, उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये केस आपसे पूछा जाता है, व्हाट इन विच केस आर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस, the nature of the image formed by the convex lens is virtual and erect. Your answer is object is placed between f1 and the optical center O. Clear? तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगी? On the same side of object, on the same side of object placed, जिस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? एंड साइज का कंपेरिजन करिए तो ये देखिए ऑब्जेक्ट की साइज है और ये इमेज की साइज है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? मैग्नीफाइड इमेज। तो गाइज ये आपका था इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बाय द कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम थ्रू द कॉनकेव लेंस। द फर्स्ट केस ऑफ कॉनकेव लेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसका मतलब ये होगा कि लाइट रेस जो वहाँ से आएगी वो कैसी होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेस आपकी इंसिडेंट हो रही हैं। क्लियर? एंड दिस इज इन डाइवर्जिंग नेचर, दैट्स वाई इट विल बी डाइवर्जेस। क्लियर? बट अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको अपीयर होगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं। सेम सपोज दैट कोई और भी लाइट रेज आ रही है जो कैसी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी आल्सो डाइवर्जेस, और डाइवर्स होगी तो आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा? अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, ये इसका मीटिंग पॉइंट होगा। तो एक अपीयर हो रहा है मीटिंग पॉइंट कहाँ पे? फोकस पे। क्लियर? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है तो लाइट रेस जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाएंगी। बट अगर आप उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको मिलेगा कि वो f1 पे मीट कर रही हैं। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? एट f1। नेचर कैसा होगा? नेचर देखिए, नेचर आपको कैसा मिल रहा है? एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है? नहीं, अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे ये मीट करेगा। अगर इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ लाइट रेस को बढ़ाएंगे तो कहीं पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड होगा तो नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, f1 पे मिल रहा है तो ये अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स ये कैसा होगा? वर्चुअल। दिस इज इन वर्चुअल नेचर एंड इरेक्ट होगा। जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एबव आपका ऑब्जेक्ट रखा है सेम साइज आपका इमेज का भी होगा। और साइज में क्या होगा? ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ साइज तो होगी। ये एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, सभी लाइट रेस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या है? 0 है। वो पॉइंट सीधे वही प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है तो उसका क्या होगा? पॉइंट साइज इमेज होगा, दैट मीन्स हाईली डैम्निज्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड, और इसी को बोल सकते हैं पॉइंट साइज। ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट केस था और इस प्लस 2 ही केस हैं। सेकेंड केस होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं पे भी, इनफाइनाइट मतलब यहाँ से मेजरेबल डिस्टेंस पे आप कहीं पे भी आप पुट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो आपका सेकेंड केस होगा। और एक वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जिसको हमने इनफाइनाइट सपोज किया। ठीक है? तो केस नंबर 2 देखते हैं।
Second case and last case of concave lens, when the object is between O, that means ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करेंगे, उस केस में क्या होगा, सपोज दैट हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, ये इनफाइनाइट हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसको पोजीशन दे रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स दिस इज द ए बी। क्लियर? ए लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the principal focus or appear to pass through the principal focus, appear to pass, that means ये आपकी लाइट रेस इस तरीके से पास होगी और इसको आप डॉटेड बढ़ाएंगे तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आपकी तरफ डायरेक्टेड होगी। क्लियर? सेकेंड वन इज लाइट रेस पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेस पास हो रही है वो विदाउट एनी डेविएशन रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है? passes through the optical center, this is the optical center, this will be pass through without any deviation। ठीक है? तो अब आप देखिए ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेस विदाउट एनी डेविएशन पास हो रही है, तो मीट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो इसका ये मीटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा इमेज, ये वर्चुअल मीटिंग पॉइंट है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। तो पोजीशन आपको क्या मिल रही है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे प्लेस करिए, इमेज हमेशा आपको मिलेगी बिटवीन O एंड F1। क्लियर? ये आपका हो जाएगा बिटवीन O, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 फोकस। नेचर कैसा है, वर्चुअल पॉइंट आपको मिल रहा है, एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? एंड साइज क्या मिल रही है, साइज आपको मिल रही है डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड साइज। क्लियर? तो गाइज ये था आपका इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम। इसके बाद हम एक वीडियो आपको और शेयर करेंगे जिसमें आप ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे आप एग्जैक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हैं उसको भी आप देखेंगे। क्लियर? आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक and you give your feedback in the comment box. Next video we will discuss with some new topic of these chapters. Thank you.